Good morning, students. So, today we are going to complete our topic, which is about the classification of energy. In the first unit, we have this topic about which is about the energy conservation. So, let's start the topic. So, as you all know, what is energy? Energy is a form of energy is that form which can neither be created nor be destroyed. It only can be changed from one form to another. This I have already told you in the last lectures. So energy is the ability to cause change in an object. Okay, it means some force we are applying or a kind of work we are doing in a like in a daily routine. We are doing some work, and everything surround us is a form of energy. So the change can involve either the motion or the position of an object or its particle. Understood? Okay. According to physics, energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on or to heat the object. It means it is that property that must be transferred to an object. अगर हम लोगों को कुछ काम करवाना है या फिर कुछ मूवमेंट होनी है, सो जो भी हम चीजें करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग टू एन ऑब्जेक्ट. ओके, we are doing a work, we are doing some work or motion, it creates an energy portion. Okay, so some points are written over here, so kindly note that. So let's come on the main topic, which is about the classification of energy. So in the last to last lecture, I have told you about some classification already. I've told you about that. So in today's lecture, we are going in some deep portion. I will tell you about most of the classification of energy. So here it is written as primary energy source, secondary energy sources, commercial energy sources, non-commercial energy sources, renewable energy sources, and non-renewable energy sources. Okay, so these are the example. Let's see all these classification of energy one by one. So the first one is primary energy sources. So what is the primary energy sources? Primary energy is that energy that is harvested directly from the natural resources. Means हम लोगों को ये directly मिल रही है हमारे अर्थ में जितने भी natural resource हैं, naturally जो भी चीजें हैं वो हम लोगों को directly मिल रही हैं. जैसे अब ये जो प्राइमरी एनर्जी है, इसको दो कैटेगरीज में इन लोगों ने डिवाइड किया है, दैट इज फ्यूल एंड फ्लोस. फ्यूल्स एंड फ्लोस. अब फ्यूल वो एनर्जी प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है जिसमें सारे के सारे हमारे फ्यूल्स आ जाते हैं. ये जो फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, प्राइमरी एनर्जी की फर्स्ट कैटेगरी विच इज फ्यूल, उसमें आते हैं. ठीक है. A country's different source of primary energy are aggregated into a quantity called total primary energy supplies. तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कंट्री अगर किसी को अपने प्राइमरी एनर्जी सोर्स का पता करना है कि कितनी क्वांटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, सो हम उसको क्या कहते हैं, TPES. ओके, विच इज कॉल्ड टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई. कितनी एनर्जी सप्लाई है उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सो इसके सिवाय हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है. जितना नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, हम लोगों को उतना ही ज्यादा नेचर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तभी हम लोगों को वहां से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम लोग अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे. if we are cutting the forest, if we are cutting some trees or from there, हम लोगों को और भी पेड़ हमें ग्रो करने पड़ेंगे. क्योंकि अगर हम कोई चीज नेचर से ले रहे हैं तो हम लोगों को उसको एक तरीके से पे बैक भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नेचर विल बी वेरी हार्श टू अस. सो primary energy almost always needs to be converted through the energy conversion technology to make it primary energy source into an energy currency or secondary fuel before it can be used. ठीक है. इस लाइन का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो हमारा प्राइमरी सोर्स है ना, उसको हमें इस तरीके से यूज करना है. अब प्राइमरी सोर्स में सपोज जैसे कि आपके पास कोल है, ठीक है,
कोल है। अब कोल का कुछ जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अब फ्यूल है, सिंपल जो फ्यूल है उसको बोलेंगे प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अब फ्यूल का कुछ पोर्शन आगे क्रूड ऑयल बन गया, पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, वो हमारा रहा सेकेंडरी, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स को हमें एक तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि जो हमारा एक प्रोडक्शन है वो इजीली चलता जाए, ये बहुत ही फिर लिमिटेड रह जाएगा। तो कोल होगी इसकी एग्जांपल, किसके लिए यूज होता है? जनरेट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और भी चीजों के लिए। मोस्टली हमारे पास ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स आ गया कोल। जैसे विंड एनर्जी है, इसको भी हम कैसे यूज करते हैं? एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। सो द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। सो व्हाट इज द सेकेंडरी एनर्जी सोर्स? अब हम देखते हैं, ये हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से डिराइव करते हैं, या तो वो फाइनल हमारे फ्यूल की फॉर्म में होते हैं या फाइनल एनर्जी सप्लाई की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है हमारी प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज को हमारे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में। ठीक है, सो जो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज है उनको एज अ हम रेफर करते हैं एनर्जी कैरियर्स भी कहा जाता है, क्योंकि दे मूव एनर्जी इन अ यूजेबल फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। The two most well-known energy carriers are electricity and hydrogen. इसको याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को हम एज ए सेकेंडरी सोर्स इसीलिए कह रहे हैं एज ए कैरियर, क्योंकि ये ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। Example, crude oil is refined and converted in products like petrol, diesel and kerosene. Crude oil मिलता है, as I told you the example, इसको फिर हम रिफाइन करते जाते हैं तो हमारे पास सब प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल, केरोसिन एंड मैनी मोर सब प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग इन टुडे डेली लाइफ। ओके, so this is all about the secondary source of energy. The other one is commercial source of energy. So what is the commercial source of energy? अब commercial meaning से आप समझो कि वो sources जो हमें that are available in the market for a definite price, उनका एक पर्टिकुलर प्राइस सेट है, वो जो हमें मार्केट में मिलते हैं उनको कहा जाता है कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस। कमर्शियल का मीनिंग ही इसकी डेफिनेशन है। ओके, बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कमर्शियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल है क्यों? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वे पेइंग फॉर दैट। हम लोगों के घर पे मीटर्स लगे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर पेइंग द बिल्स टू दैट। कोल वी आर यूजिंग, वी आर टेकिंग, वी आर बाइंग कोल फ्रॉम द मार्केट। हम लोग खरीद के लाते हैं, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी सुरंग है भाई हम लोग खुद खोल के लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो कोल है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मींस हम लोग अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। सो दीज आर सम कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस की एग्जांपल्स। सो कमर्शियल एनर्जी फॉर्म्स बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। जैसे अब आपको थर्मल पावर प्लांट लगाना है, सो वी नीड कोल फॉर दैट। हम लोगों को कोल की हीट से थर्मल वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एग्रीकल्चर में यूज की जाती है, ट्रांसपोर्ट में जैसे क्रूड ऑयल का रिफाइंड फॉर्म यूज किया जा रहा है, दैट इज अबाउट पेट्रोल एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स, डीजल। एंड कमर्शियल डेवलपमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, इन इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज commercialized fuels and predominant sources are not for the economic production but also for many household tasks of general population. It means this is a very important part of our industry for any country to get into an industrialization field. Okay, so commercial energy sources is a very important part. इसकी examples देखो, जैसे electricity, lignite, coal, oil, etc. Okay, examples आप सबको लो याद कर लो। So let's see about the non-commercial energy sources. अब इसके नाम से पता चल रहा है non-commercial sources which are not available in the market for a price, उनको कहते हैं non-commercial sources। जैसे commercial वो मिल रहे थे हमें मार्केट में as a price। So non-commercial sources क्या कहते हैं? They include fuels such as firewood, कैटल डंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मींस हमारे गांव में जितने भी इंडिया में गांव है तो दे यूज टू प्रिपेयर काउ केक्स फ्रॉम द गोबर।
Okay, and they used to stick that, not used to, but they're doing all, they are doing now also. They are sticking the cow cakes on the wall, and they used to burn that cow cakes. They are burning that cow cakes when they want to make food in the chूल्हाs. ठीक है, सो वो लोग उसको बर्न करते हैं ताकि वो लोग क्या कर पाए, फायर को प्रोड्यूस कर पाए. ठीक है, सो उसको कहेंगे नॉन कमर्शियल सोर्स. वो अपने लिए एनर्जी खुद क्रिएट कर रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग एनीवन फॉर दैट. हाँ, वो इन फ्यूचर वो चीजें सेल करते हैं, वो बात अलग है, बट दे आर नॉट एट अ हाई लेवल. से we can say that they are doing at their own level. So they are producing for themselves, not for others. That's why it is about the non commercial energy sources. So cattle dung and agricultural waste, which are traditionally gathered and not bought at a price, used especially in household. मोस्टली सभी के घरों में ये चीजें यूज होती हैं, एक बड़े लेवल पे यूज नहीं होती है. दे आर यूजिंग एट अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म. ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फ्यूल्स. उनके यहाँ पे काफी सालों से यही सब चीजें बनती आ रही हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फ्यूल्स. सो नॉन कमर्शियल एनर्जी इज ऑफन इग्नोर्ड इन एनर्जी काउंटिंग. अभी मैंने बताया ना, एनर्जी काउंटिंग होती है किसी भी कंट्री की, तो उसमें जो नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज हैं वो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. मींस ये कैलकुलेशन पे नहीं आते क्योंकि बहुत कम लोग इनका आजकल यूज करते हैं. सो आजकल जो भी चीजें यूज हो रही हैं, दे आर यूजिंग एज अ कमर्शियल पार्ट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, बाकी सब चीजें वी आर पेइंग फॉर दैट. दैट्स व्हाई दैट इज कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फायरवुड, लकड़ियां जो हम लोग जलाते हैं. एग्रो वेस्ट मीन्स एग्रीकल्चरल वेस्ट फ्रॉम रूरल एरियाज. So this is all about the non-commercial energy sources. Let's do the renewable source of energy. अब मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था renewable source of energy क्या होता है. ये ऐसा सोर्स है, this is the energy acquiring from never ending source of energy available in the nature. नेचर में एक ऐसी एनर्जी जो कभी भी एंड होने वाली नहीं है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. इसका मेन फीचर ये है कि इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन. जब भी हम इनके प्रोडक्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं हमारे नेचर से, तो ये जो है विदाउट एनी पोल्यूशन वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट. सो renewable energy is the energy that is collected from renewable resources which are naturally replenished on a human time scale such as sunlight, हमारी सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, टाइड्स, वेव्स एंड जियोथर्मल हीट. इस तरीके से जितने भी हमारे ये एनर्जी के फॉर्म्स है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में. सो renewable energy often provides energy in 4 important areas. अब बिजली कैसे बन रही है हमारी, हाइड्रो पावर प्लांट लगाया है, मींस डैम्स बन रहे हैं हमारे. हम इसको विंड एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, इन एरियाज में ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और चीपर है. एयर एंड वाटर हीटिंग, कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सीएनजी यूज हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में. नेचुरल ऑफ ग्रिड एनर्जी सर्विसेज, ये रहा हमारा एनर्जी रिसोर्सेज. अब इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था. जियोथर्मल हीट क्या होती है, जो अर्थ की हमारे अर्थ के कुछ ऐसे एरिया जो नेचुरली हीट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. सो वहां पे प्लांट लगाया जाता है एंड उस हीट को हम कैसे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, that is all about the renewable energy sources. Means it is geothermal heat. So इसके examples as you all know, ये सभी examples हैं इसके. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और भी ये सब सारे भी एग्जाम्पल है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के. सो नेक्स्ट देखते हैं. इट इज अबाउट द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो नॉन रिन्यूएबल, अगर रिन्यूएबल ऐसे सोर्सेज है जिनका कभी एंड नहीं होने वाला, दे आर नेचर इज प्रोवाइडिंग अस. सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मींस इनका एंड हो सकता है. दे आर इन अ वेरी what you can say that in a very limited form. They are present in a very limited form. It is the energy obtained from the conventional fuels which are exhaustible today or tomorrow with the time.
कोई भरोसा नहीं, आज खत्म हो कल खत्म हो, और बहुत ही लिमिटेड टाइम है। सो सम प्रोडक्ट्स के लिए, सम चीजों के लिए, सम सोर्सेज के लिए गवर्नमेंट हैज आल्सो वार्नड अस कि ये चीज बहुत लिमिटेड है, वी कैन आने वाले सालों में मे बी we can lost it properly. So a non-renewable source is also called a finite resource, is a resource that does not renew itself. बार बार अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम पेड़ से लकड़ी काटते हैं, वो पेड़ वापस से हमारा ग्रो कर जाएगा, दैट इज इन अ कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। लेकिन क्या हम कोल को मतलब बार बार यूज करेंगे, माइंस में से कोल को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो तो एक टाइम आने पे खत्म हो जाएगा। वो कितने सालों से वो प्रोसेस चलता है, मिलियंस ऑफ इयर्स, इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कन्वर्ट, मींस जितने भी हमारी चीजें कन्वर्ट होती रहती है, फॉसिल फ्यूल्स ये सब चीजें कन्वर्ट होके कोल की फॉर्म में आती हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है। तो अगर कोल खत्म हो जाएगा तो व्हाट वी विल यूज इन द फ्यूचर। सो ये था हमारा एग्जाम्पल। देखो जितने भी कार्बन बेस्ड हमारे पास चीजें हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बिकॉज अगर हम दोबारा देखें ये चीजें हो सकती है, बट इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी कोल, ऑयल, गैस, हाइड्रो पावर, डीजल पावर एक्सेट्रा। सो ये था आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप लोगों ने ये सब चीजें देखी होंगी, पहले भी चीजें देखी होंगी, बट हम लोगों को वापस से ये टॉपिक कवर करना है। सो आप लोग जो जैसे मैंने बताया वैसे पढ़िए, जो एग्जांपल्स मैंने बताई है वैसे उनको देखो, समझो, read again and again so that your concept will clear. So I hope you have understood the video. Thank you.